شاملی جیسے یوپی کی اس تحصیل میں، اس ڈسٹرکٹ میں جو ریورٹ بھائی کی ایک سچویشن سامنے آئی، اس نے کئی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کئی لوگوں کو۔ یہ کہانی کیا ہے؟ جن لوگوں کو نالج نہیں ہے، جن کو بیک گراؤنڈ میں رائٹ اور لیفٹ پر دو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ لوگوں کی کہانی کیا ہے؟ آج کی اس سٹنگ کے اندر اس کہانی کا بے لاگ تبصرہ اور تجزیہ ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ ایک بات بتا دوں، جب میں اس طرح کے ہندو اور سناتنیوں کو دیکھتا ہوں کہ جو سچ کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی پرکار کے بلیدان سے بھی وہ اس میں دیری نہیں کرتے اور آگے بڑھ کر ستیہ کو سویکار کرتے ہیں، میرا سناتنیوں کے اوپر وشواس بڑھنے لگتا ہے۔ مجھے پتا چلتا ہے کہ سناتن دھرم واقعی ایشور کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں، اس میں بدلاؤ آیا، تبدیلی آئی، جس وجہ سے سناتن دھرم وہ دھرم نہ رہا جو ایشور کی طرف سے 100% آیا تھا، وہ اب ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ ہماری لڑائی، ہماری شترتا وچاروں کے آدھار پر ہے، نہ کہ ویکتیگت آدھار پر۔ نہ ہمیں آپ کے کسی چہرے سے، نہ آپ کے کسی طور طریقے سے، نہ آپ کے رہن سہن سے کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں مسئلہ اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ مورتی پوجا کرتے ہیں، یا آپ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے، یا کیا پہنتے ہیں کیا نہیں پہنتے۔ ہماری سمسیا اس سے نہیں ہے۔ ہماری سمسیا اس سے ہوتی ہے کہ آپ اسلام کے پرتی جو گالی گلوچ اور نفرت پھیلائیں وہ نہ کریں، بس۔ زیادہ لمبی کہانی نہیں ہماری۔ اب چلیں بنا کسی تاخیر کے میں آپ کو ایک داستان سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں داستان آپ کو سناؤں، آج مجھے ایک حدیث یاد آئی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 145 نمبر کی، 145 نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبى للغرباء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام اجنبی کے طور پر اس کا آرمب ہوا تھا۔ اسلام کا آرمب، اس کا سٹارٹ، اس کی بگننگ بڑی غریب تھی۔ یہ اردو والا غریب نہیں ہے، عربی والا، جس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ لوگوں کو لگتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، اسلام اجنبی کے طور پر آیا تھا، لوگ اس کو نہیں جانتے تھے یہ کیا سسٹم ہے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر، بالخصوص ان ایریاز میں جہاں پر ہندوتوا نے لوگوں کو بیمار کر رکھا ہے، ان کو لاگر کر رکھا ہے، روگی کر رکھا ہے، وہاں پر اسلام دوبارہ اپنی اس استھتی کے اندر آ گیا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، یہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ میں آج جب ایوش ملک عرف محمد علی کے قصے کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کے انٹرویوز کو سنتا یا سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ چار جانب سے جب صحافیوں کے مائک، جرنلسٹ اور پترکار بھن بھن پرکار کے پرشن اس پر انڈیلتے ہوئے، اس کو پریشر دیتے ہوئے، اس کو بلیک میل کرتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں، تو آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایک نو مسلم نے پورے انڈین میڈیا کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی نئی مخلوق انڈیا میں آ گئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آج ہندوؤں کے اندر سے ایک ایسا مسلمان نکلا ہے کہ خود مسلمان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان، یہ مسلمان ہے، ہم بھی تو تھے،
ہمارا نام بھی تو عبد الرحمان تھا, ہم بھی تو عبداللہ تھے, ہم بھی تو بلال تھے, ہمارا نام بھی تو ابو نے ابو بکر اور امی نے عمر رکھا تھا, عثمان طلحہ زبیر ہمارا بھی تو نام تھا. یہ کون سا مسلمان ہے, یہ کون سا اسلام لیے پھر رہا بھائی؟ لوگ تعجب میں چلے گئے. تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دو جہاں کی بات آج یوں سچ ہو رہی ہے کہ جیسے چڑھتا سورج سچا ہوتا ہے. اور پھر اقبال نے اس کی شاید شکل یوں کھینچی ہوگی جو آپ کو جواب شکوہ میں دکھائی دیتی ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے, چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. میں حیران ہوں, میں جب اس 30 سالہ نوجوان کے اندر ایمان کی حرارت کو دیکھتا ہوں, اسلام کی حدت کو دیکھتا ہوں, رسول اللہ کی غیرت کو دیکھتا ہوں, توحید کی شمع کو ابلتے ہوئے تنور کی مانند دیکھتا ہوں, واللہ حیران رہتا ہوں کہ ہم اچھے تھے یا یہ اچھے ہیں, اسلام کی سمجھ ہمیں آئی تھی یا انہیں آئی ہے. آج محمد علی ایوش ملک ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر کے اس ٹکڑے میں بسنے والے نوجوانوں تمہارے لیے اسلام کی تعریف کا استعارہ بن گیا ہے. میں حیران, ہم سوچتے تھے اسلام شاید اس چیز کا نام ہے کہ سر پھینک کے جیئیں گے, روجی روٹی کمائیں گے, اللہ اللہ کریں گے, مولوی صاحب جنازہ پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. ہم نے سمجھا تھا اسلام اس چیز کا نام ہے. آج سمجھ آتی ہے, آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کے اندر 2260 حدیث کھولیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے, آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک وقت آنے والا ہے, اے انس لوگوں پہ ایک وقت آنے والا ہے. کہا یا رسول اللہ کیسا وقت؟ فرمایا الصابر فیہم علی دینہ القابض علی الجمر, آپ نے فرمایا اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہو کہ پھدکتا اور اچھلتا پھر رہا ہے, تڑپتا پھر رہا ہے, کہ نہ دین کو چھوڑ سکے, اگر عمل کرنا چاہے تو لوگ اس کی طرف نفرت بھری اور دہشت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آج مجھے بتاؤ اس شخص کی یہ حالت ہے کہ نہیں ہے؟ 4 دن سے مسلسل 8 جون کے بعد سے اب تک اس کو کپڑے تبدیل کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی, کپڑے تبدیل کرنے کی فرصت نہیں ملی. اور اس کا جرم پتہ کیا ہے؟ سننا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ اس کی دکان کے سامنے کھڑا ہو کر ایک شخص 24 نیوز والا انٹرویو لینے آیا, اس نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیا کر دیا ہے محمد علی, تم نے کیا کر دیا ہے, پورا دیش تمہیں گھور رہا ہے, دنیا حیران ہے, بچے بھی پریشان ہیں اور بڑے بھی حیران, تو نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں قربان جاؤں ایسے لو جہاد کے اوپر, میں قربان جاؤں ایسی برین واشنگ کے اوپر, میں فدا ہو جاؤں ایسے بلیک میل اور ایسے پریشر کے اوپر کہ وہ شخص کہتا ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. وما نقموا منہم, اصحاب الاخدود کا بھی جرم صرف یہ تھا کہ وہ بچے کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے, ہم کسی مورت کی پوجا نہیں کرتے, ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پوجا پاٹ کا معاملہ نہیں کرتے. ان کا جرم یہ تھا, وہ کہتا میرا جرم یہ ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ پڑھا تھا کہ جب چچا ابی طالب کے پاس جوک در جوک مشرکین مکہ آئے, آ کر ستا مارا, آ کر تنگ کر مارا, آ کر الزامات اور شکایات کی بوچھاڑ کر دی, جس میں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے,
चचा आए, मुस्कुराकर अपने भतीजे की तरफ देखा, शायद आंखों में आंसू भी होंगे, दिल में ये उम्मीद हो कि किसी तरीके से अपने भतीजे को बचा लूं। दिल का सच्चा है, रूह का पाक है, मानता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलता, दुनिया की कोई लालच नहीं है, दौलत की हिरस और तमा नहीं है, मगर क्या करूं, कौम इसकी दुश्मन हुई खड़ी है। आपने कहा, भतीजे तू अमल कर, अल्लाह को एक मानता है मान, इनको गलत कहना छोड़ दे। मैं कुर्बान जाऊं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी पर। आपने फरमाया, चचा मेरे एक हाथ में सूरज, मेरे एक हाथ में चांद रख दें, अल्लाह की कसम जिस चीज को हक समझता हूं कहने से पीछे नहीं हटूंगा। हम तो उस रसूल के मानने वाले थे। आज ये पैगाम मैं आयुष मलिक के मुंह से सुन रहा हूं, आयुष मलिक के। नहीं यकीन, आओ सुनो मुख्तसर सी। जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और ही होता, उतनी महक देता माहौल। किसी ने उससे पूछा कि आपका नाम आयुष बुलाएं या आपको मोहम्मद अली बुलाएं। ये ब्रेन वॉश हुआ और ये ब्लैकमेल हुआ और ये लव जिहाद का विक्टिम कहता है गुलाब का कुछ भी नाम रख दो, महक तो उससे वही आएगी ना। ऐसा ब्रेन वॉश हुआ ये। वाह वाह, हैवी ब्रेन वॉशिंग हुई है भाई, हैवी ब्रेन वॉशिंग। आगे सुनते जाओ जरा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसकी बात सुनो जिन्होंने नहीं सुनी, और हैरानी और परेशानी में डूब जाओ कि ये कौन सी आग है जो इसको तूफान किए हुए है तिन के माया तू जर्रे से बयाबां हो जा, नगमाए मौज है हंगामाए तूफान हो जा। वो कि जो कभी तिनके थे वो एक तूफान की हालत इख्तियार किए हुए हैं। ये कौन सा तगय्युर, कौन सा परिवर्तन है जो मानने में नहीं आ रहा, पूरे देश के प्रेशर में नहीं आ रहा। कमाल बात यह है कि ये कौन सी ब्रेन वॉशिंग है जो उस लड़की और उसके परिवार ने ब्लैकमेल करके डेथ थ्रेट देके कर ली, जो पूरा देश नहीं कर पा रहा। वाह, ये कौन सी तलवार है जो हमें नजर नहीं आ रही आज। ये वही तलवार थी जो उस वक्त थी, आज भी वही तलवार है। समझ नहीं आ रही है कौन सी तलवार हमें दिखाना चाह रहे हैं, मगर जरा गौर से देखना, सुनना। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और ही होता, उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई ये है। प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी सरकार। मुझे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता मेरे एक हाथ में सूरज दे दो, एक में चांद दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी शॉपर्टी ले जाओ तुम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये है रोल मॉडल। जब आपका रोल मॉडल हो ना, और उस रोल मॉडल की जिंदगी का एक पहलू प्रैक्टिकल हो, ये है रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको मुसलमान के अंदर नजर आते हैं। ये है वो रसूल, हमारा रोल मॉडल, जो आपको जिंदगी की हर परेशानी में, हर उतार चढ़ाव में, हर दिक्कत में नजर आता है। यार ये बड़ा ब्रेन वॉश हुआ है भाई, बड़ा बहुत बढ़िया ब्रेन वॉश हुआ है। मैं कहता हूं उसने करोड़ों मुसलमानों की को शर्म में डबो कर रख दिया है, करोड़ों मुसलमानों को। तुम्हारी बातें, तुम्हारे जनाब बड़े बड़ी डिग्रियां, तुम्हारे बड़े बड़े जनाब फनीरते ये थे वो, उस पर रौंद के रख दिए हैं अपनी सादे ईमान के सामने। ये है ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर एक बुक खजूर को जब पूरे के पूरे उस जो है वो ढेर के ऊपर बांटा, तो आपने कहा तुम जिस खुलूस के साथ आए हो, इस खुलूस के साथ तो बड़े बड़े यहां पर गायब हो गए हैं अजर के एतबार से। वो खा पी गया है,
अब दुनिया में बढ़ के मारते रहो जिसने मारनी है, हाँ घूमते रहो जिसने गाड़ियों में घूमना है, जो भी करना है, तमाशे तमाशे जो भी तुम कर रहे हो करते रहो, कोई हुक्मरान है या कोई इधर उधर वाला है, जो भी है वो खा भी गया भाई, इतनी सी बात थी। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपको बैकग्राउंड के अंदर गेट यूज टू इट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा तजर्बा भी है और हमारा मुशाहदा भी। इन्होंने इसको ब्लैकमेल और बुली करने के चक्कर में और मुसलमानों को इबरत का निशान बनाने के चक्कर में हिंदू समाज के नौजवानों को एक फैशन और ट्रेंड दे दिया जाने अनजाने में। रसूलुल्लाह के मुतल्लिक और इस्लाम के मुतल्लिक वो बातें जो शायद आप और मैं 24/7 भी इनके मीडिया पर बैठकर बात करते ना तो असर नहीं करनी थी, जो उसने इन चंद इंटरव्यू के अंदर खा पी के डकार मार गया हिंदुत्व को। मैं आपको हकीकत बताऊं, वो खा पी गया हिंदुत्व को, इनको पता ही नहीं चला। जो बातें वो कर गया ना, वो नौज अल्लाह अकबर, वो काम कर गई हैं, उसने बीज फेंक दिया अपना तरीके के साथ। जो स्टार्टिंग के इसके 8 जून के इंटरव्यू है ना, अगर किसी ने ये जो मैं सुना रहा हूं ये 8 जून के इंटरव्यू है, आगे सुनना आगे भी 8 जून के इंटरव्यूज जिस किसी ने सुने हैं ना वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है, मैं बड़ा गौर से चीजों को देखता हूं। वो इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो तबलीग कर रहा है, वो तबलीग कर रहा है। मैंने उसको कैमरे की तरफ नहीं देखा, मैंने उसको पब्लिक की तरफ बात करते देखा है। उसका मिशन ही कुछ और है, वो कुछ और काम कर गया है, इनको किसी को भी नहीं पता चला, मीडिया वाले को। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, एड़ी चोटी का। हिंदुओं के खिलाफ उससे कुछ बात निकाल दें, देश के खिलाफ उससे को बात निकाल दें, मुस्लिम समाज के खिलाफ को बात निकाल दें, मुसलमानों के खिलाफ, यानी खिलाफ से मुराद ये नहीं को गाली गलौने नहीं, जो प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट हो सकती है ना हिंदुत्व की, किसी हिंदू को, भाई को, बहन को, या किसी मुसलमान भाई बहन को ब्लैकमेल करने के लिए, पटरी से उतारने के लिए, इन्होंने सब कुछ करके देखा है। वो बंदा काबू नहीं आ रहा। आप और मैं होते तो काबू आ चुके होते, वो नहीं काबू आ रहा। मैं सही आपको बता रहा हूं, आप और मैं जो बहुत बड़े फनी और इंटेलिजेंट और जीनियस बनते हैं ना, हम इस मीडिया के हत्थे चढ़ चुके होते अब तक, वो नहीं काबू आया। पता क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल साथ है। पता क्यों? क्योंकि वह मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, अल्लाह बेस्ट प्लानर है। यही चीज जो मैं आपको बता रहा था पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह अकबर। मैं हल्फन आपको बताऊं, मैं बड़ा बेताब था इस मुद्दे पे बात करने के लिए। मैं जब इस बंदे के इस हमारे भाई के इंटरव्यू सुन रहा था, मैं मुस्कुरा भी रहा था, रो भी रहा था, अपने अल्लाह की मसलहत पर हैरान और परेशान भी था। यानी मैं शशदर रह गया कि खैरुल माकिरीन काम कैसे करता है। आप मुझे बताओ, एडी चोटी का जोर लगा के इतनी मीडिया कवरेज किसी मुसलमान को मिलनी थी कि वो बात इस्लाम की रख सकता है? कि भाग भाग के मीडिया मुंह के अंदर माइक दे के पूछे, आप बताएं ना कि किसका, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का नाम आ गया और कई उलमा के नाम आ गए। मैं आपको बताऊं, 9/11 के बाद यही कुछ वेस्ट में हुआ था, मगर उस वक्त प्रिंट मीडिया था, बहुत रेयर था सैटेलाइटिक का। ये तो सोशल मीडिया तो था नहीं कि इतनी जल्दी बात फोन पर पहुंचती, मोबाइल फोन्स भी नहीं थे 2001 में इतना ज्यादा। तो वो ये इन्होंने यही कुछ किया। लोगों ने कहा पढ़कर तो देखें। अब जाकर हर पूछ रहे हैं वो पाकिस्तानी मौलाना कौन है। अच्छा, इनकी मूर्खता चेक करो। एक कहता है जी वांटेड, उनके सर की कीमत लगा दो, उनको वांटेड कर दो, डॉक्टर इसरार अहमद साहब को वांटेड। उल्लू के पट्टो, वो 2010 में फौत हो चुके हुए हैं, उनको तो फौत हुए ही 15-16 साल हो गए हैं। उनका क्या करना है तुमने? वो तो अपना काम करके कहते हैं वांटेड, डॉक्टर इसरार अहमद वांटेड, उसका पता लगाओ। फिर बुक तुम्हारे पे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। वो तो 2010 में फौत हो गए बच्चे, क्या करते हो? कितना रोक पाओगे?
इसी तरह हमारे चले जाने के बाद कोई नाम लेगा तो फिर हमें ढूंढते रहना। फिर ढूंढते रहना, आमिर हक वांटेड, मुफ्ती यासर वांटेड, कैसर अहमद राजा वांटेड, फलाना स्कॉलर, मैंने अपना नाम तो वैसे ही ले लिया, फलाना वांटेड, ये लेने इनके नाम थे जो हमारे स्कॉलर में, फलाना वांटेड, तो हम सो रहे होंगे। हम जा चुके होंगे अल्लाह के हुक्म से। हाँ, ढूंढते रहना, हम नहीं नजर आने के। तुम में से तो कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं। हाँ, हम हैं पानी के बुलबुले, आए और चले गए, आपको कानो कान भी खबर नहीं होगी कि ये जा चुका हुआ है दुनिया से। हाँ जी, जैसे इनको खबर नहीं हुई डॉक्टर इसरार की, अल्लाह के हुक्म से हमारे भाइयों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब सुनो बड़े गौर से, सवाल आगे बढ़ने लगा है। यहां पर मैंने ये क्यों कहा गेट यूज टू इट, आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने क्यों कहा पता है? इसलिए कि ये नौजवान एक फिनोमेना बनने वाला है, ये नौजवान एक ट्रेंड बनने वाला है, ये नौजवान एक गोदी मीडिया के लिए और हिंदुत्व समाज के लिए एक सीख बनने वाला है इंशाअल्लाह, ये सबक बनने वाला है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसका ये स्टैंड, इसकी ये मेहनत, इसकी ये काविश अल्लाह के हुक्म से कई सनातनी बहनों भाइयों की हिदायत का सबब बनेगी, उनके लिए सत्य की प्रकाश बनेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। याद रखो, हिदायत के वो कहते नहीं है अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का, अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का, कि एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। अब हकीकत यह है कि किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी मौलाना और किसी खुतबे और तकरीर की और दलीलों की जरूरत नहीं। जब ईमान दिल के अंदर सरायत करता है, जब तौहीद का तूती बोलता है, और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर रगों में दौड़ने लगते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से फिर उस शख्स को इस्लाम से पीछे रख कोई नहीं सकता। ये आकर रेसिपियां पूछ रहे हैं, मुसलमान बनने की रेसिपी। कोई आता है आकर कहता है अच्छा कितनी देर में हो गया ऐसा, कैसे हो गया आपके साथ ऐसा, थोड़ा बताइए ना क्या क्या देखते थे आप। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे एलियन आया है दूसरे सियारे से। तो ये हकीकत है, इससे पता चलता भाई करोड़ों मुसलमान आपके साथ रह रहे हैं, कभी उनको पूछा नहीं, इसको पूछने आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि इलाही मशीयत फिर मिस्टीरियस वेज में काम करती है। क्या पढ़ते हैं, कैसे हो गए, वैसे हो गए, कैसे हो गए, उसको पूछने आ गए। पता है क्यों? एक कहता जरा उसका नाम तो बता दीजिए जल्दी से ताकि पता तो चल जाए। और उन्होंने कहा क्या करेंगे जी, पता तो चल जाए ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। पता क्यों? पूछ इसलिए रहे होते हैं, याद रखना आपने, कि फलां चैनल को बैन कर दें, अब डॉक्टर इसरार की वीडियोस के ऊपर बैन लगा देंगे, नजर रखेंगे। पता क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये डाटा कलेक्ट होता है। 9/11 के बाद CIA ने एक केस जो है वो कोर्स पढ़ाया था एकेडमी के अंदर, वो बेसिकली इस्लाम की स्टडी था। उसकी फाइल जो है वो डीक्लासिफाई हुई है, मेरे पास पड़ी है, काफी साल पहले मैंने ऑफिशियली वो डाउनलोड की थी। उस केस में वो आपको बताते हैं कि मुसलमान किन स्कॉलर्स को ज्यादा सुनते हैं, कौन सी फिका को फॉलो करते हैं, तो आपने कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये अब होगा क्या कि आपको पता है इस लड़के का मोबाइल ले गए हुए हैं, 4-5 दिन हो गया उसके पास उसका फोन नहीं है। तो ये क्या करते हैं, फोन के थ्रू जो हिस्ट्री है ना इंटरनेट की सर्फिंग की, उसको स्टडी करते हैं। उसको स्टडी करने के बाद ये फिर ट्रेस करते हैं लोगों को कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियोस किसके फोन में हैं, कहीं नजर पड़े तो उसके कैसे आपने डील करना है, ठीक है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस कौन ज्यादा देख रहा है, ठीक है। यानी वो उस पर अलार्मिंग सिचुएशन एक हो जाती है। ये टेक्निक होती है इनके, हाँ, इसे कहते हैं डाटा हंट। ये हंट करते हैं बेसिकली केसेस के हवाले से। तो फिर बाद में एजेंसीज इस तरह के कोर्सेज पढ़ाती हैं, इन उसको करती हैं, शॉर्टलिस्ट करती हैं कि आपने किसी बंदे को कैसे ट्रेस करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। खैर सुनते हैं, फिर मैंने आपको बहुत कुछ आज सुनाना है, तो आगे बढ़ते हैं।
नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस देख देख तो लो छोटे छोटे कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी ये बड़ा जरूरी है, 2008 बड़ा जरूरी है यहां पर ये चीज समझना। यहां पर 3 बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना, मामले के हवाले से। मगर पहले आप इसको सुन लें, मेरे ख्याल से मैं आपके साथ गलत ना करूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको सुन लें, तो सुनने के बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड भी देता हूं, थोड़ा डिटेलिंग। जी मोबाइल से है उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जावे थे तब जाके देखे थे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे इन्फ्लुएंस होकर ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो हो गई, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। हाँ जी, मेरा गुनाह क्या है कि मैंने अल्लाह को एक कहा। आओ आपको बताता हूं कि ये गुनाह इनके बकौल और किसने किया था, ठीक है। हाँ। अल्लाह, उन्होंने कहा मेरा गुनाह क्या है, ये पूछा ना जी। उन्होंने कहा मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह ये है कि मैंने अल्लाह को एक माना है, यही गुनाह है आपका। बदा अल इस्लाम गरीबुन व सयाउदु गरीबा, ये हकीकत है। असहाबुल उखदूद दोस्तों जो थे, ये वो नौजवान थे उस इलाके के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यानी उस वक्त का जो सच्चा धर्म था, यानी जो इस्लाम ही ऑब्वियसली हमारी नजर में तो इस्लाम रहा, वो उन्होंने कबूल। तो बड़ा सा गड़ा खोद के ना आग का, ये उनको कुतिला असहाबुल उखदूद, गड़ा खोद के, उखदूद गड़े को, गड़ों को कहते हैं। तो उनके लोग, इनको इसलिए कहा जाता है कि गड़े खोद के ना बड़े बड़े आग लगा के इनको उसमें फेंका गया था कि अगर तुम घर वापसी नहीं करोगे तो हम तुम्हें जला देंगे, अग्नि देवता में फेंक देंगे, ठीक है। क्योंकि वो कहते थे कि हम मरकर जहन्नम में नहीं जाना चाहते। तो वो कहते थे तुम मरने के बाद जहन्नम की बात करते हो, हम तुम्हें अभी जहन्नम में फेंकेंगे, वरना घर वापसी कर लो। तो क्या कहा उन्होंने कि उनका जुर्म क्या था, कुरान क्या कहता है 85 की एड में, और उनका मोमिनीन की ये ही बात बुरी मालूम हुई कि वो लोग खुदा पर ईमान लाए थे जो जबरदस्त और सदाबार हमद है, सदाबार हमद है, ठीक है। चलो इसको हम दूसरी हिंदी में कर देते हैं थोड़ा, वो जो खेत वाली है ये वाली। हाँ, उन्होंने उन ईमान वालों से केवल इस कारण बदला लिया। हाँ जी, कुरान कह रहा है उन्होंने ईमान वालों से केवल इस कारण बदला लिया और शत्रुता की कि वो उस अल्लाह पर ईमान रखते थे जो अत्यंत प्रभुतशाली व प्रशंसनीय है, यानी तारीफ के काबिल है और पावर वाला है। ये देखो कुरान कह रहा है कि असहाबे उखदूद का भी जुर्म ये था। आज मुझे बताओ वो लड़का भी आयुष उर्फ मोहम्मद अली यही कह रहा है, वो कहता मेरा जुर्म क्या है कि मैंने अल्लाह को एक कहा है, ये मेरा जुर्म है। ये सुनना जरा उसकी बात दोस्तों, फिर गौर से सुना एक बार, ठीक है। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था ये वीडियो? आशू? लो जी, यहां तक आपने सुना। मुझे एक चीज बताएं, मैंने एक प्रोग्राम किया था, अगर आपने वो प्रोग्राम देखा है तो वो प्रोग्राम था क्वेश्चन आंसर सेशन, और उसकी एपिसोड मैं आपको बताता हूं ताकि आप वो देख लें अगर देखना चाहें। उसमें मैंने एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस की थी। तो वो प्रोग्राम था दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन, और उसकी एपिसोड थी 96, 2 महीने पहले, क्वेश्चन आंसर सेशन एपिसोड 96। उसमें मैंने एक बिल डिस्कस किया था जो महाराष्ट्र फोर्स कन्वर्जन बिल था, जिसको पास किया गया, फोर्स कन्वर्जन बिल। उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फोर्स कन्वर्जन बिल के अंदर ना, महाराष्ट्र में जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर है जैसे यूपी वगैरह में भी, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके इजाफा किया है। वो अमेंडमेंट्स पता है क्या की थी अमेंडमेंट्स? वो अमेंडमेंट ये थी कि मान लो मैं हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता था, मान लो एक समय के लिए ना, एक नहीं, फॉर उदाहरण, फॉर इंस्टेंस आप मान लें मैं हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता हूं। अब हुआ क्या कि मुझे इस्लाम ने प्रभावित किया, मैं इस्लाम से इंस्पायर हुआ और मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। अब मैं 18+ भी हूं, आर्टिकल 25, 26 सेक्शंस जो हैं मुझे अनुमति भी देते हैं कि मैं अपनी स्वतंत्रता
अपने इंडिपेंडेंट जो हूं मैं, ठीक है ना, मेरी अपनी जो प्योर विल है, तंत्रता जो है, अरे ये वर्ड मेरी जुबान पर नहीं चढ़ रहा, या अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से मैं धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को स्वीकार कर लूं। अब सुनना जरा, मैं इस्लाम को स्वीकार कर लूं तो अब होगा क्या पता क्या, बड़ी तादाद में ऐसे केसेस हिंदुत्व की गवर्नमेंट के सामने आ रहे थे कि जहां किसी ने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल किया है, और इस्लाम कबूल करने के बाद अब वो हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि मैंने तो अपनी स्वयं की इच्छा से किया है। तो पता कहते हैं, उन्होंने कहा वो बच्चा केस ना करे, उसके माता पिता केस कर दे, उसके बहन भाई केस कर दें, चाचा ताया केस कर दें। एक मिनट के लिए मुझे बताओ, एक आदमी जो 18 साल से ऊपर हो गया है, देश का संविधान उसको ये अनुमति देता है, उसको ये अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा से किसी धर्म को स्वीकार कर ले, तो उसके माता पिता का क्या रोल है बीच में? सोचने की बात है ना। या तो संविधान को निकाल के माता पिता को रख दो वहां। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बताओ, फोर्स कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या रही? फोर्स कन्वर्जन की तो डेफिनेशन ही बदल हो गई। एक लड़का 30 साल का आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मैंने अपनी इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया है, आप कहते हैं फोर्स कन्वर्जन हो गई। पता किस बेस पे? क्योंकि उसका पिता कह रहा है, उसकी माता कह रही है, और पिता भी क्यों कह रहा है वो भी आपके सामने चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर कोई मुसलमान लड़की को आप हिंदू बनाते हो, तो मुसलमान माता पिता आकर कह सकते हैं कि फोर्स कन्वर्जन हुई है? नहीं, आप लोग तो उनको अंदर डाल दोगे, है ना। सही मानो मैं आपको बताऊं, मेरी बात बड़े गौर से सुनना, यूपी पुलिस को चाहिए कि ये जितने मीडिया वाले समेत एक स्वामी महाराज हैं ईश्वर, मैं उनका बताऊंगा, इन सब को फोर्स कन्वर्जन के लॉ में अंदर फेंकना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कह रहा है मैंने इस्लाम अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, मगर अब मुझे फोर्स किया जा रहा है सनातन धर्म स्वीकार करने के लिए, तो फोर्स कन्वर्जन तो अब हो रही है। पूरे देश का मीडिया उसको फोर्स कर रहा है, पुलिस उसको फोर्स कर रही है, हिंदुत्व वाले जितने संप्रदाय के लोग हैं, दल हैं, वो सारे उसको फोर्स कर रहे हैं कि घर वापसी कर। कोई कह रहा है तुझे प्रॉपर्टी से आग कर देंगे, कोई कहता है ये कर। इसका मतलब ये है, कान खोल के मैं सनातनियों से कहता हूं, खुदारा जहां इस लड़के ने इस्लाम का प्रचार किया ना, वहीं इसने हिंदुत्व की पोलपट्टी भी खोल के रख दी है। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में फोर्स कन्वर्जन सिर्फ एक है कि अगर कोई शख्स सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम को कबूल कर रहा है, इस्लाम नहीं कोई कबूल कर सकता, ये होगी फोर्स कन्वर्जन। वो लड़का चीख चीख कर कह रहा है, कहता है मुझे आप लोग, मैं आगे सुनाऊंगा, वो कहता है आप मुझे अब फोर्स किया जा रहा है सनातन धर्म के लिए, मुझे अब फोर्स किया जा रहा है। एक अदालत किसका बयान मानेगी इस इंडिविजुअल के हक में? एक अडल्ट है, एक जो है ना मेजर है, एक लड़का है 30 साल का, अगर वो कोर्ट में जाकर कहे कि मुझे फला फला बंदा जो है वो सनातन धर्म के लिए फोर्स कर रहा है, मैं तो इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया है, तो किसकी बात मानी जाएगी? इसके पिता की क्या इसकी? अगर सुनो जरा, अगर 30 साल के लड़के की भी अपनी इच्छा नहीं है, तो फिर इच्छा है किसकी? मुझे ये बताओ, फिर इच्छा है किसकी? तो फिर बंद करो ये ड्रामा। ये सारे का सारा जिनाब हम आर्टिकल देते हैं कि हर बंदे को हक हासिल है कि वो कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, फिर ये बंद कर दो। अगर 30 साल के लड़के की अपनी इच्छा नहीं है, 30 साल के लड़के को अगर फोर्स कन्वर्ट करवा लिया है, और बता कौन रहा है जी? उसके माता पिता। ये क्या है? ये कौन सा नियम है? कौन सी दुनिया के अंदर इसको नियम माना जाता है? इस तरह तो कल को मुसलमान उठ के आ जाएंगे। ये बात समझ से बाहर है। खैर बहरहाल आगे